وہ تمام حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، یعنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل کیے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمل آپ حضرات کو بتاؤں گا وہ روحانیت کی بنیاد ہے، وہ روحانیت کی ابتدا ہے، وہ ہی روحانیت کی انتہا ہے، یعنی اس عمل کے کیے بغیر آپ روحانیت میں کوئی بھی نمایاں مقام نہیں پا سکتے۔ اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے، پانے کے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو پانے یا اس طرف سفر کرنے کے کئی راستے ہیں، لیکن ان رستوں میں سب سے زیادہ مفید اور آسان محفوظ راستہ جو ہے وہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ یہ عمل اپنے معمولات کے اندر شامل نہیں کریں گے یا اس عمل کے آپ عامل نہیں بنیں گے، آپ کو روحانیت تو ملے گی، غلامی رسول تو ملے گی، فیض ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کبھی بھی کرنی والے، ڈنڈے والے پیر نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی کرنی والے یا ڈنڈے والے، تصرف والے، اختیار والے عامل نہیں بن سکتے۔ آپ کے پاس روحانیت ہوگی، تصرف ہوگا، اختیار ہوگا، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں وہ بڑی محدود حد ہے، بڑے محدود اختیارات ہیں، بڑے محدود تصرفات ہیں، بڑے محدود کمالات آپ کو نصیب ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس نہ وہ یقین ہے، نہ ہمارے پاس وہ تقوی ہے۔ اگر کوئی ہم ایسا عمل کریں جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق مضبوط کر دے، تو پھر اللہ والو جس کے شانوں کے اوپر، جس کے کندھوں کے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی پھر منزل کمزور بھی ہو تو پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ تھوڑی منزل کے ساتھ بھی وہ پا جاتا ہے جو بڑی بڑی منزل پا کر بھی نہیں پاتے، یا بڑی بڑی ریاستیں کر کے بھی وہ مقام نہیں پاتے۔ کیوں؟ جس پہ کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے پھر وہ ریاستوں کا یا مجاہدات کا محتاج نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی نگاہ کرم اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ ہم قیامت تک بھی مجاہدات کرتے رہیں، ریاضات کرتے رہیں، چلہ کشیاں کرتے رہیں، ہم اپنی محنت سے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو جن کو اللہ نے قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی کملی کے نیچے چھپا لیا، وہ صحابہ بن گئے۔ تو ساری امت مل کے بھی، امت کے غوث کتب ابدال مل کے بھی ایک صحابی رسول کا مقام نہیں پا سکتے۔ تو اسی طرح دوران ریاضت، مجاہدہ یا دوران سلوک جس کے اوپر حضور کا کرم ہو گیا، یا وہ چل ایسے رستے پہ پڑا کہ جس رستے پہ کرم ہوتا ہے، تو جب اس پہ کرم ہو گیا تو وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس مقام پہ دوسرا صدیاں محنت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب عمل میں کیا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے حضور کا قرب مانگنا ہے، یا آپ حضور کا قرب چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، چاہے آپ کا نریٹو یہ ہے، مقصود یہ ہے، یا کسی تربیت کرنے والے نے آپ کی تربیت کر دی ہوئی ہے، آپ مانگ ہی غلامی رسول رہے ہیں، دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا۔ کچھ لوگ موحد ہوتے ہیں، ان کی توحید عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی تو بات کرتے ہیں، حضور کی بات نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حضور کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں کرتے، تو وہ توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کے در کی فقیری چاہتے ہو، تو یہ بات لکھ لو کہ ولایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ یوں جڑی ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے، یعنی در مصطفیٰ کے تم غلام نہیں ہو، تم اللہ کے در کے فقیر نہیں بن سکتے۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب، ان کو فرما دیجئے
अगर अल्लाह से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो मेरी इत्तबा करो। अल्लाह अब उसके ऊपर इनामात क्या देगा? तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये दो इनामात का अल्लाह ने इस आयत मुबारका के अंदर वादा किया है। अगर मुझसे प्यार करते हो, दावेदार हो कि हम मवाहद हैं, हम अल्लाह से प्यार करते हैं, तो फिर मेरा ही हुक्म है मेरे महबूब की इत्तबा करो। तो जब तुम मेरे महबूब की इत्तबा करोगे तो दो इनामात दूंगा। पहला इनाम क्या है? तुम्हें अपने करीब कर लूंगा, अपने दर का फकीर बना लूंगा। और दूसरा इनाम क्या है? तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है, बख्शने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुलामी रसूल को वलायत की बुनियाद बनाया है, वलायत की बुनियाद बनाया। अब यहां दो इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं, इत्तबा, और इत्तबा के साथ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात। अब अतात और इत्तबा ये बड़ा हसास सा मौजू है। दो फिक्रे मैंने बोलने, तवज्जो के साथ आपने समझ रहे हैं। अतात और इत्तबा दिखने में ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। अतात न चाहते हुए भी होती है, अतात न चाहते हुए भी होती है। जिस तरह नमाज अल्लाह का हुक्म है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अतात कर रहे होते हैं, यानी हुक्म को मान रहे होते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी पढ़ रहे होते, न चाहते हुए भी पढ़ रहे होते। लेकिन जो इत्तबा है, इत्तबा होगी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और अतात भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह की सिर्फ हम अतात करेंगे, इत्तबा नहीं है। तो अतात हम करेंगे हजूर की, वो एक अलग मामला है, वो चाहते न चाहते भी हो सकती। लेकिन इत्तबा जो है उसके लिए मोहब्बत का होना शर्त है। इत्तबा का मतलब ये है कि हजूर की मंशा को समझो, हजूर की रजा को समझो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लब कुशाई नहीं भी फरमा रहे, जो चाहने वाले हैं वो रजा को समझते जाएं। जैसे कमली वाला कर रहा है तुम भी करते जाओ, जैसे हजूर बैठते हैं तुम भी वैसे बैठो, जैसे चलते हैं तुम भी चलो, जैसे कलाम फरमाते हैं तुम भी कलाम करो, ठीक है। अब अल्लाह के नबी हुक्म नहीं भी दे रहे कि यूं करो, तुम अपने आप को उनकी अदाओं के अंदर रंगते जाओ। इसका नाम है इत्तबा। इसका नाम क्या है? इत्तबा। इत्तबा में हुक्म नहीं दिया जाता, हुक्म नहीं दिया। उम्मती क्या करता है कि अपने महबूब को देख के उसकी अदाओं को अपनाता चाहता है कि मेरा महबूब इस तरह कपड़े पहनता है, इस तरह चलता है, इस तरह बैठता है, इस तरह कलाम करता है, इस अंदाज से सोता है, इस अंदाज से सवारी पे सवार होता है, यूं मुस्कुराता है या यूं रोता है। जो अदा भी उसके सामने आती है वो उस अदा को अपने दिल में उतार लेता है, फिर धीरे धीरे उसको अपनी जिंदगी में शामिल करता है। फिर उसकी अदाएं और महबूब की अदाएं, मुहिब की अदाएं और महबूब की अदाओं में कोई फर्क नहीं रह जाता। मुर्शिद की अदाओं और मुरीद की अदाओं में कोई फर्क नहीं रह जाता। आका की अदा और गुलाम की अदा में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो ये है इत्तबा। तो इत्तबा के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है, और मोहब्बत के लिए जिसकी मोहब्बत है या जिससे मोहब्बत करनी है उसके लिए उसका जिक्र होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो अगर हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करनी है तो हमें जिक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से करना पड़ेगा। जो मैं बात कहता हूं कि अगर जिक्र रसूल नहीं है तो फिर तुम आशिक़ रसूल नहीं हो। तो जो आशिक़ रसूल नहीं है वो गुलाम रसूल नहीं है। तो जो गुलाम रसूल नहीं है वो अल्लाह के दर का फ़कीर नहीं है। तो ये सारी बातें आपस में यूं जुड़ी हुई हैं। अब कोई ये कहे मैं गुलाम रसूल हूं लेकिन दुरूद पाक से भागता है, दुरूद पढ़ता नहीं है, अल्लाह के नबी का जिक्र आता है वहां से भागता है, ठीक है। एक खातून ने मुझे रात को वॉइस नोट किया कि हज़रत साहब मैंने खिजरी अमल की ज़कात दी है, मेरे सारे मामला ठीक हो गए। मेरी सास आई, हमने महफिल मेलाद करवाई, उसमें हमने उसको मदू किया, बस वो आग बगोला हो गई। और उसका दावा है कि जब मेरी मंशा और मेरी रजा या मेरे हुक्म के खिलाफ चलोगे तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। उसके बाद हमारे घर के सारे मामला दोबारा से ख़राब हो गए हैं। यानी वो जादूगरनी है सास,
اس نے جا کے عمل کیا. اب محفل میلاد میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہ شیطان سے برداشت نہیں ہوگا. جس طرح اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حضور کا نام آئے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا. تو محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، کملی والے کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ شیطان سے یا بد عقیدہ لوگوں سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا. باقی وہ میلاد جو فی زمانہ چل رہا ہے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو ذکر رسول کی بات کر رہے ہیں. ہاں ایک اصطلاح ضرور استعمال کر رہا ہوں میلاد کی، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اگر وہ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے تو ہم محفل ذکر رسول یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، مجلس ذکر رسول یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں. جب سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میلاد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میلاد کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے. ہم کہتے ہیں حضور کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بات کرو. ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھاؤ کہ سیرت النبی کانفرنس جائز ہے ناجائز ہے، میلاد جائز ہے ناجائز ہے. ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھاؤ. یہ پیٹ کے پجاریوں کے لیے ہمارے سے بات کر رہی ہیں تو یہ بات کرو کہ اللہ کا ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، حضور کا ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بات کرو، ہم دلائل دیں گے، ہم تجھے مطمئن کریں گے. اور قیامت تک تو نہ یہ سوال کر سکتا ہے نہ ہی ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے. بات اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی ہے. بہانہ کوئی بھی ہو، چاہے محفل میلاد کا بہانہ ہو یا سیرت النبی کانفرنس ہو یا سالانہ کوئی اجتماع ہو، کوئی بھی ہو، بہانہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوگا ہمارے اندر عشق رسول نہیں آئے گا. عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول نہیں ہے، غلامی رسول نہیں ہے تو اللہ کے در کی فقیری نہیں ہے، یعنی آپ کو ولایت نہیں مل سکتی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب یا اللہ کی طرف جانے والے راستے لامحدود ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا قرب، آپ کی غلامی، آپ کی طرف جانے والے راستے لامحدود ہیں. لیکن کوئی ایک راستہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آسان بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے. جس طرح ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے قرب کے راستے کئی ہیں، تیری معرفت کو پانے کے راستے کئی ہیں، تیری طرف بڑھنے کے راستے کئی ہیں. یا اللہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا جو مختصر بھی ہو، آسان ترین بھی ہو اور محفوظ بھی ہو اور میں جلدی تیرا قرب پا جاؤں. تو رب نے الہام کیا، القاء کیا، عبد القادر اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، محفوظ راستہ چاہتا ہے تو میری مخلوق کی خدمت کر، میری مخلوق کی خدمت کر. پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مخلوق کی خدمت کے تو کئی شعبے ہیں. دیکھیں نا، آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا، وہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. یہ جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. آپ نے کسی کو دعائی لے کر دے دی، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. کسی کو 2 لفظ پڑھا دیے، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. کسی کو راستہ بتا دیا، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. مخلوق کی خدمت کے تو کئی شعبے ہیں. تو جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو رب نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا. یعنی کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب سے زیادہ آسان اور محفوظ راستہ ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. اس لیے خانقاہی نظام کے اندر لنگر چلتا ہے. جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو پانی پلایا جاتا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے. تو پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ مخلوق کی خدمت کا راستہ چنا. اب یہ ہو گیا اللہ کی طرف کا راستہ. اب ہے دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کا راستہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا جو راستہ سب سے زیادہ محفوظ ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ منور ہے، جس کی نورانیت سب سے زیادہ ہے، اور اگر سالک کامیابی سے سفر کر جاتا ہے تو اس کو وہ تصرف، وہ اختیار یا ولایت کا وہ مقام ملتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا. وہ راستہ ہے اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جتنی حضور کی اتباع کرو گے، جتنا غلامی میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارے ولایت کے درجے بڑھتے جائیں گے. تو جو راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، یعنی ولایت کا اعلیٰ ترین مقام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 اذکار ہیں. کیا ہیں 2 اذکار؟ پہلا کیا ہے کہ کوئی بھی عامل ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی ہے،
किसी भी सूरत का उसने जिक्र किया हुआ है, रियाजत की हुई है, ज़कात दी हुई है, उसका आमिल बना हुआ, उसका फैज़ लिया हुआ है, वो सारा आंखों पे है क्योंकि कुरान है। लेकिन अगर वो सूरह मुज़म्मिल का आमिल नहीं है तो उस पे वो करम नहीं होता जो सूरत मुज़म्मिल के ऊपर हजूर का करम होता है। सूरत जिन का वो आमिल है और बड़ा ही करनी वाला आमिल है, डंडे वाला आमिल है, लेकिन सूरत मुज़म्मिल का आमिल है नहीं है। जो हजूर की नजर सूरत मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर होगी या जो अल्लाह का करम सूरत मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर होगा वो सूरत जिन वाले के ऊपर नहीं होगा। या सूरह यासीन है, सूरह फल्कनास है, कोई और सूरत है, उस आमिल के ऊपर वो करम नहीं होगा जो करम सूरह मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर होगा। जो सूरह मुज़म्मिल का आमिल होगा उसके ऊपर अल्लाह भी करम कर रहे हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी निगाह करम फरमा रहे हैं। पहली बात। दूसरा जिक्र या दूसरी बात यह है कि जो कसरत से दुरूद पाक पड़ेगा उसके ऊपर अल्लाह का भी करम होगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तवज्जो आएगी। क्यों? रब क्या फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह खुद दुरूद भेज रहा है, उसके तमाम फरिश्ते भी बेशक दुरूद भेज रहे। तो जो अमल अल्लाह कर रहा है उससे बढ़कर या उससे अफजल अमल नहीं है। तो जो शख्स सूरह मुज़म्मिल और दुरूद पाक इन दो अज़कार को पकड़ लेगा फिर अल्लाह वालों उसको किसी तीसरे जिक्र की जरूरत नहीं रह जाती। यानी मैंने वाज़े कर दिया, अगर तो अल्लाह की तरफ बढ़ना है तो मखलूक की खिदमत करो। और खिदमत में से कौन सी खिदमत? भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतें पूरी करो। ये सबसे आसान और महफूज रास्ता है जिस रास्ते पे डकैती नहीं होती, ईमान नहीं छीनता, राहज़न जो है वो गुमराह नहीं करते, लूटते नहीं है। हजूर की तरफ बढ़ना है तो सूरह मुज़म्मिल और दुरूद पाक ये दो का जो मजमुआ है, दो अज़कार लेके चलोगे तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। तुम बदअकीदा लोगों से बचते रहोगे। वो लोग जो फैज़ याब हुए हैं उनकी निगाह तुम्हारे ऊपर रहेगी, वो चौकीदारा करेंगे। यानी इधर जाना है, हजूर की तरफ बढ़ना है तो सूरह मुज़म्मिल और दुरूद पाक, अल्लाह की तरफ बढ़ना है तो मखलूक की खिदमत। तो हमने अल्लाह की तरफ बढ़ना है, हमारी मंजिल क्या है? अल्लाह। लेकिन वो मंजिल मिलती है वाया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कहता है कि नहीं बस मखलूक की खिदमत करते जाओ, इधर जाने की जरूरत नहीं। वही तो गुमराह है, वही तो गुमराह है। वो तौहीद परस्त हो के गुमराह हो गया, उसे मालूम ही नहीं है कि अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत वाया दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। क्यों रब ने कुरान उतारा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत मिलनी उसी सूरत में है जब दर मुस्तफ़ा की गुलामी हो। ये सीधा सीधा हो ही नहीं सकता, ये सीधा सीधा नहीं है। ये पहले ऐसे जाएगा दर मुस्तफ़ा पे, फिर सीधा होगा। जब मालिक सीधा करवाएंगे तो सीधा होगा। अल्लाह वालों, जब इस रास्ते पे चलना है तो हमने दो अज़कार को लेकर चलना है। एक जिक्र है दुरूद सलाम का और दूसरा जिक्र है सूरह मुज़म्मिल का। अब सूरह मुज़म्मिल कैसे पढ़नी है, दुरूद पाक कैसे पढ़ना है और दुरूद कौन सा पढ़ना है, ये अमल आप तवज्जो के साथ सुन लें। अगर आपको मेरी पहली बात समझ आ गई है कि जब तक हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम नहीं बनते हम अल्लाह के दर के फ़कीर नहीं बन सकते। अब हम बात करेंगे कि कौन से आमाल करें जिनसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी बाआसानी मिल जाए, बिलखसूस आज के दौर में। तो उसके लिए मैंने दो अमाल बताए हैं, एक है सूरह मुज़म्मिल और दूसरा है दुरूद पाक। पहले बात करते हैं सूरह मुज़म्मिल पे। चांद की 13, 14, 15 रात को, जो यानी रातें हैं, उसमें आपने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा करनी है। यानी आपने अपने सफ़र की जो इब्तदा है वो यहां से शुरू करनी है। सूरह मुज़म्मिल की ज़कात किन रातों में अदा करेंगे? चांद की जो तारीखें होती हैं 13, 14, 15, यानी 13 की रात, 14 की रात और 15 की रात आपने 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। मुकम्मल शराइत के साथ पढ़ेंगे, हसार के साथ पढ़ेंगे। और अगर आपको शराइत का इल्म नहीं, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सूरह मुज़म्मिल की जब ज़कात देंगे तो आप मजबूत हसार करें तो सबसे बेहतर है। और अगर आप हसार नबवी अलैहिस्सलाम कर लेते हैं तब भी चलेगा, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ज़कात का मामला बड़ा हसास होता है, इसलिए मजबूत हसार करें। वो तमाम हज़रात जो आज पहली बार सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं,
आप यूट्यूब पर जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, वो सामने आ जाएगा। आप लिखें हसार नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, दोनों सामने आ जाएंगे। दोनों बयानात छोटे छोटे, उनको सुने समझें, आपको कौन सा करना आसान लग रहा है। लेकिन मैंने वाज़े भी कर दिया कि खिजरी अमल करोगे तो वो ज़्यादा महफूज है, वो ज़्यादा ताकतवर हसार है। हसार नबी अलैहिस्सलाम करोगे वो महज हसार है, लेकिन वो मजबूत है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाया है, इसलिए वो हसार भी चलेगा। इन दोनों में से जो आप मुंतखब कर लेते हैं, 13 तारीख की रात को आपने एक वक्त का तयन कर लेना है और हसार करके 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। पानी आपने पास रख लेना है, खुशबू आपने पास रख लेनी है, तस्बीह आपने अपने पास रख लेनी है। आज जो खुशबू आप इस्तेमाल करेंगे तादम मौत अब यही खुशबू चलेगी। जोन सी मर्जी खुशबू इस्तेमाल करें, आपके ऊपर है। जोन सी मर्जी तस्बीह इस्तेमाल करें, लक्कड़ की करें, संदल की करें, या वो आजकल जो काउंटर आता है वो इस्तेमाल करें, इट इज़ ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर है, कोई इसमें सख्ती नहीं है। सिर्फ शराइत क्या है, एक वक्त का तयन करना है, एक लिबास होगा, एक ही खुशबू होगी, ठीक है, और तादाद भी एक ही चलेगी 111। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो हर 11 बार दुरूद इब्राहिम होगा। और पहले आप हसारे नबवी करेंगे, और बेहतर है कि आप पहले हसार खिजरी अमल का करेंगे। ये मुख्तसर सी शराइत हैं, कोई जलाली जमाली परहेज इसके साथ नहीं है। अब आपने 3 दिन की ये ज़कात अदा करनी है, लेकिन इस 3 दिन की ज़कात के साथ ही आपने दुरूद पाक की भी 3 दिन की ज़कात अदा करनी है। और दुरूद पाक मैं कह रहा था कौन सा चलेगा, जब हमने रास्ते को आसान करना है तो दुरूद पाक चलेगा, दुरूद ताज। दुरूद ताज आप पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ेंगे 111 बार, और दुरूद ताज आप पढ़ेंगे 41 बार। कितनी बार? 41 बार। 41 बार दुरूद ताज और 111 बार आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करें, पानी वो पिएं, घर में छिड़कें, घर में कोई बीमार है उसे पिलाएं। इस तरह घर में जादू के असरात हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बीमारी हैं, अपने घर पे छिड़कें। कारोबार की जगह वहाँ बंदिश है, माली तंगदस्ती है, तो वहाँ पानी ले जाएं, वहाँ आप छिड़कें। अगर घर में कुछ ज़्यादा बीमार है तो उसको उस पानी के साथ आप नहलाएं, पानी बढ़ाते जाएं सादा पानी डाल के, और उसको इस्तेमाल करवाएं। 3 दिन का ये अमल है। रोज़ाना आपने 13 की रात को, 14 की रात को, 15 की रात को आपने 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और 41 बार आपने दुरूद ताज पढ़ना है। अल्लाह बोलो, ये आज वो मोती आपको दे रहा हूं कि ऐसे पलक झपकने में तुम्हारे पे करम हो जाएगा। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या हदिया दिया है और कौन सा आसान और महफूज रास्ता दिया है। सारी जिंदगी रियासतें कर कर के, वजीफे कर कर के मर जाओगे, टंगे नहीं टुंगे जाओगे। मिलनी आज के दौर में तुम्हें कोई शय नहीं। ये शाफी ने मुख्तसर सा छोटा सा अमल दिया है, इतना कीमती मोती दिया है। अल्लाह वालों, इसको अपने अंदर उतार लेते हो, 3 दिन का सिर्फ काम है, तुम्हारा वलायत का रास्ता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का रास्ता खुल जाएगा। फिर हर महीने 13, 14, 15 को ये अपना अमल दोहराते रहना है। हर महीने की 13, 14, 15 को ये अमल दोहराते रहना है। अगर बिलफर्ज खवातीन है, वो 13, 14, 15 को ये अमल करना चाह रही हैं, वो हालत नपाकी में आ गई हैं, तो वो 21, 22, 23 को ये अमल कर सकती हैं। इस तरह आप मर्द हजरात है, आपका कहीं आना जाना हो गया, गमी खुशी हो गई, आप 13, 14, 15 को ये अमल नहीं कर सके, आप 21, 22, 23 को भी ये अमल कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी मैंने आपके सामने रख दी। उसमें अगली आसानी ये है, वो तमाम हजरात जो बयान सुनकर ये ज़हन बना रही है कि हम भी ये अमल करेंगे कि जिससे दुनिया भी बनती और आखिरत भी बनती, अल्लाह भी मिलता और उसका हबीब भी मिलता, तो हम भी ये अमल करेंगे। लेकिन हम 111 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, हम शुगर के मरीज़ हैं, हमारे से बैठा नहीं जाता, या हमारा फ़लाँ उज़र है, हमारे बच्चे हैं, हम इतना वक्त नहीं दे सकते, उनके लिए मैं आसानी दे रहा हूँ। आप ये तरतीब भी बना सकते हैं कि रात को मिसाल के तौर पे आप 10 बजे ज़कात देने के लिए बैठे, तो आपने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात शराइत के साथ, जो मैंने 2-4 शराइत बताई हैं, उनको पूरा करके ज़कात आपने दे दी, बस आप दुआ करके उठ जाए। दुरूद ताज नहीं पढ़े। फजर की नमाज जब पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप 41 बार दुरूद ताज पढ़ लो, वो भी चलेगा।
यानी अर्ज ये करना चाह रहा हूं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लोगे तब भी ये काम चलेगा। और अगले दिन भी सुबह रोजा रखना है, अयामे 20 के रोजे रखने हैं, यानी 13, 14, 15 की रात को ये अमल करेंगे और 13, 14, 15 दिन के 3 अयामे 20 के रोजे रखेंगे। अल्लाह वालों, ज़ाहिर भी मुनव्वर होता जाएगा, बातन भी मुनव्वर होता जाएगा। सालों पुराना जादू है, वज़ाइफ के असरे बद है, काली नजर का वार है, या किसी भी जराए से नेगेटिव एनर्जी आई, उसने आपको हिट किया हुआ है, मुतासिर किया हुआ है, हर तरह की गलाजत से, नहूसत से, नजासत से अल्लाह आपको पाक कर देगा। तमाम अलाइशों से आप पाक और साफ हो जाओगे। रूहानियत का रास्ता अब एक बार खुल जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन शर्त क्या है? पहले गुनाहों से तौबा और यकीन का अमल। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। सिर्फ 2 शर्तें लगा रहा हूं, कुरान ने 2 लगाई हैं, वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अमलियात की दुनिया की भी यही 2 ही शराइत है कि आपका इस अमल के ऊपर यकीन हो। शाफी की बात पे यकीन नहीं, कुरान पे यकीन। मेरी बात क्या है? मेरी बात की कोई हैसियत नहीं है, कुरान पे यकीन। क्यों? मैं आपको कुछ जंतर मंतर सिफली अमल नहीं बता रहा कि मेरे अब्बे ने पढ़ा तो ये हुआ, मेरी अम्मा ने पढ़ा तो ये हुआ, मेरे दादे ने पढ़ा तो ये हुआ। मैं कुरान की बात कर रहा हूं। तो कुरान तकाजा करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यकीन कामिल, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा। तो 2 शराइत है, गुनाहों से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल आजारी से बचो, और यकीन कामल। इन 2 शराइत को पूरा करके ये अमल करो। अल्लाह वालों, इस धरती पे तुम होगे, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं होगा। जिस इलाके में होगे उस इलाके में तुम ही होगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, उस इलाके में 20 आमिल होंगे, अल्लाह वाले होंगे, लेकिन जो तेरी वलायत का रंग होगा वो निराला होगा, वो बेमिसल मिसाल होगा। जो नेमत सरकार तुझे अता करेंगे वो तुझे अता करेंगे, वो तेरे ही पास होगी, किसी दूसरे के पास नहीं होगी। तेरा किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं होगा, तेरे मद्दे मुकाबिल ही कोई नहीं होगा। क्यों? दुरूदे ताज पल भर में वहां पहुंचा देता है जहां सोचा भी नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले, यानी मेरा गालिब गुमान है कोई 20 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 25 दिन पहले, ये भी मैं कह रहा हूं 20-22 दिन की बात है, यूके से एक वॉइस नोट आया, यानी एक फैमिली ने मेरे से रब्ता किया ऑनलाइन जो हमारी सर्विस है उसके जरिए, कि हजरत साहब मेरा बेटा है वो बोलता नहीं है, ठीक है, सुनता नहीं है और बोलता नहीं है। मैंने जब उस खातून का वॉइस नोट सुना, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये कामचोर भी है और इसका अकीदा भी डामाडोल हुआ है और ये वजीफे पढ़ पढ़ कर टुंगी भी हुई है। ये बातें उसने मुझे कही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से मैंने सारा उसको स्कैन कर लिया। मैंने अमल ही एक बताया कि मैंने कहा आपने दुरूदे ताज पढ़ना है। ये आजकल की बात बता रहा हूँ। दुरूदे ताज आपने पढ़ना है 41 बार रोजाना। पढ़ के बच्चे को दम करो, पानी पे दम करके बच्चे को पिलाओ, मेरा रब अपने महबूब का मोजज़ा रूनुमा कर देगा। इस एतबार को उनकी वालदा और उनकी बहन मेरे पास आई कि जी वो दुरूद पाक की तादाद में को कमी कर दें, वो यूं कर दें, वो फुलां कर दें, अब बच्चा बेहतर है, ये है वो। उन्होंने मेरे से कुछ बातें की, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा जी जिनका मसला है ना, आप उन्हें कहें कि मेरे से बराह रास्त बात करें, वो वॉइस नोट सेंड करें, अपनी सूरत हाल बताएं, उसमें जो रद्द-बदल होगी मैं कर दूंगा। लेकिन आपकी बातें जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही, तो मैं नहीं चाहता, मासूम बच्चा है, कोई ऐसा हम अमल कर बैठें कि सारी जिंदगी के लिए हमारे ज़मीर पे बोझ ख़त्म ना हो, हम कोई गलत पढ़ बैठे, बच्चे की ज़िंदगी पहले बर्बाद हुई हो, मज़ीद बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ, आप उन्हें कहें मेरे से बराह रास्त रब्ता करें। अब उस खातून ने रब्ता किया, अब ज़रा सुनिएगा और पीटिएगा भी अपने आप को कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। उस खातून ने 20-22 दिन दुरूदे ताज पढ़ा है, अल्लाह ने गूंगे और बहरे बच्चे को शिफा अता फरमा दी। उस खातून ने खुद एतराफ़ किया कि हज़रत साहब पहले से बहुत बेहतर है, अब मोटे मोटे अल्फाज बोलना शुरू हो गया। तो क्या है, मजीद अभी अमल मुकम्मल होगा 40 दिन का या 70 दिन का, साथ थोड़ी सी स्पीच थेरेपी करवाएं, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। जो ही वो अफाका हुआ है तो साथ ही माँ और बहन के जरिए पैगाम भेज दिया है, एतदाद थोड़ी नहीं हो सकती, ये पढ़ा नहीं जानता। डॉक्टर कहता है कि 3 साल स्पीच थेरेपी करवानी है, ठीक है, काउंसलिंग करवानी है, तो इलाज चलता रहता। शाफी ने कहा घर बैठे पढ़ो,
نہ हिंग ना फटकरी, 1 रुपया नहीं लगा, उसकी कदर ये हुई है कि इसको कम नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कम करते, चलो 21 बार पढ़ लिया करो। अब 21 बार पे भी इसरार है और कम नहीं हो सकता। ये है अल्लाह वालों हमारे ऊपर फटकार। मैंने क्या कहा कि जिसको हजूर की गुलामी नहीं मिलनी, ना वो सूरह मुज़म्मिल पढ़ सकता है, ना वो दुरूद ताज पढ़ सकता है, और ना वो दुरूद इब्राहिम पढ़ सकता है। दुरूद तामा खास तौर पे वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। ये निशानियां हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई, और आज हम मसनद पे बैठ के उनकी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं और हक कहा है। एक तो मेरे मुर्शिद मेरे लजपाल ने ये बात इरशाद फरमाई कि मुफ्त फैज की कदर नहीं होती। हमने 12 साल दिन रात अपने लगा दिए, खपा दिए मखलूक की खिदमत पे, तो कुत्ता कुत्ता हुए हैं। कुत्ता लफ्ज भी छोटा है, इससे कोई बड़ा और जब बुरा और गंदा गलीज हकीर लफ्ज नहीं है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं। मुफ्त फैज की कदर ये है, यानी जो आया हमने नमाजा, जो आया नमाजा है, सिवाय कुत्ता कुत्ता के हमें कुछ नहीं मिली। और जिनको हमने टोंग के रखा है वो कहते हैं शाफी नाल दा मां ने जमिया ही कोई नहीं। हालांकि हमने, मैं खुद कह रहा हूं कि हमने उनको टोंग के रखा है। वो क्या कहते हैं, शाफी नाल दा मां ने जमिया ही नहीं। और जिस पे आते मैंने कर्म कर दिया है उसने स्वाय कुत्ता कुत्ता अपने आप को करवाया और साथ हमें भी करवाया। खुद भी रोले हैं और हमारी निस्बत को भी रोला है, खुद भी अपने दरवाजे बंद किए हैं और हमें भी साथ मरवाया है। अब मुझे बताओ कि जो शख्स 41 बार दुरूद ताज पढ़ता है, उसके घर से इतनी बड़ी परेशानी खत्म हो रही है। किसी की औलाद का गूंगा होना, बहरा होना, अल्लाह वालों सोचो जरा, और उसको शिफा घर बैठे बगैर पैसा खर्च किए मिल रही है, और वो उसकी कदर क्या हो रही है, कम कर दो, 21 बार पढ़ लो और कम कर दो। वो जी वक्त नहीं मिलता। फिर अगली बेकदरी, अगर शर्म आ जाए तो अल्लाह से तौबा कर लेना कि या अल्लाह इस बदबख्ती से मुझे महफूज फरमा। अगली क्या है, हजरत साहब ये जो दुरूद ताज है, चलो वो जितना आप कह रहे हैं उतना मैं पढ़ती रहूंगी, लेकिन किसी वक्त नहीं मिलता, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा जी, उसका भी जवाब दे दिया। अच्छा अगली बात ये है कि कोई परेशानियां आ जाए, मुसीबतें आ जाए, कोई तकलीफ आ जाती है, तो मुझे पढ़ने के लिए कोई और विरद बता दें। कित्थे जावा ते मंजी कित्थे डावा, यानी तेरे बच्चे के ऊपर जो मुसीबत आई ये मुसीबत नहीं थी, ये परेशानी नहीं थी। जो दुरूद ताज अपना मौजज़ा जाहिर कर रहा है, दुनिया की और कोई परेशानी तेरे ऊपर आ जाती, क्या वहां ये नहीं चलेगा? आगे क्या कहने लगी, हज़रत साहब पहले मैं रसाले वाले पीर के बहुत वज़ाइफ करती थी, मुझे बहुत नफ़ा हुआ। मैं क्या, हाँ नफ़ा हुआ, ये तुझे नफ़ा हुआ, तेरी अकल नहीं काम कर रही। मैंने या रहमान या रहीमू का वजीफा पढ़ा, मुझे ये नफा हुआ, ये हुआ। आप भी मुझे कोई अमाल बता दें, मैं वो कर लूं, या जो मैं पहले अमाल करती थी वो दोबारा शुरू कर लूं। अल्लाह वालों ये हमारी हालत है दमागी। अब उन वज़ाइफ की रजत बच्चे पे पड़ी है, उसकी मुजरमा ये माँ है, मुलजमा नहीं, मुजरमा उसकी माँ है। कल उस बच्चे को शाफी के बयान सुन के बाद समझ आ जाती बड़े होके कि मैं जुबान से महरूम हुआ हूं कि मां की गलतियों की वजह से, मैं सुनने की समात की कुव्वत से महरूम हुआ हूं तो मां की बेवकूफियों की वजह से। मुझे बताओ उस बच्चे के दिल में मां के लिए मोहब्बत के जज्बात रह जाते? तो मां मुजरमा है, बात नहीं समझ रही कि मेरे गलत वज़ाइफ की रजत पड़ी है, तो मेरा बच्चा सुनने और बोलने की कुव्वत से जो है या दौलत से है महरूम हो गया। लेकिन फिर वो क्या कह रही है, मैं अगर आप कहें तो मैं पहले वाले वज़ाइफ शुरू कर लूं, या फिर मुझे आप कोई वजीफा दे दे। जब आपने ये पैकेज ले लिया सूरह मुज़म्मिल का, दुरूद ताज का, फिर जिंदगी भर आप कोई वजीफा नहीं कर सकते। कोई भी वजीफा करोगे इसके साथ कोई टांका, कोई टोच लगाओगे, फिर टंगे नहीं टूंगे जाओगे, और अल्लाह उथे टूंगेगा जिथे तेरी नस्लों की निगाह भी ना पहुंच सके। तू कहां टुंगया हुआ, ऐसा तुझे अल्लाह मिसाल इबरत बना के रख दे। क्यों? जब तौहीन इस दर्जे की होगी तो सजा भी फिर उसी दर्जे की होगी। जब रास्ता इतना शॉर्टकट और कुर्ब वाला है, अल्लाह ना करे जो इस रास्ते से धुतकारा गया, फिर ये नहीं है कि ये वाली लाइन तोड़ के इस लाइन में लग जाए। तू नादरा के दफ्तर के बाहर नहीं खड़ा, या पीएए की लाइनें नहीं बनी हुई तो इधर से निकलेगा वो लाइन है ना, वो वाली लाइन, ओ काउंटर उठे थोड़े बंदे और से लग जो जाके। पाकिस्तानी है ना, सोच हमारी है, ये लाइन छोटी है, ये तोड़ को उधर लग जो। इधर ये काम नहीं है, इधर ऐसे हुआ तो 12 साल। जो रूहानियत के मुसाफिर हैं उनसे पूछो कि मैं क्या बोल गया हूं। इधर तूने लाइन तोड़ी, ऐसे ऐसे हुआ तो 12 साल। या उनसे पूछो जो रजत में फंसे हुए हैं, वो थोड़ा सा निकलते हैं फिर वापस आ जाते हैं, निकलते हैं फिर वापस आ जाते हैं। रूहानियत में तो इतना शेख ने फरमा दिया कि इंतजार करो, जरा ठहर जाओ तो समझो तुम्हारी जिंदगी के 10-12 साल
کھڈے لائن لگ گئے، برباد ہو گئے۔ روحانیت میں انتظار کا مطلب یہ ہے 12 سال۔ تو 12 سال اب جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے۔ تو اللہ 12 سال کون کھڑا ہوتا ہے؟ 2-4 دن، 5 دن، 2-4 مہینے کو کھڑا ہوگا، بڑا بھی کوئی ڈنڈوں والا ہوگا تو وہ 2 سال کھڑا ہوگا، آخر میں کہے گا میرے مرشد پلے کا ہی شے نہیں، 2 سال تو میں اتھے کھلوتا ہوں۔ پھر وہ چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ جب بھاگے گا تو ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، پھر سب کچھ اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ دنیا بھی جائے گی اور ساتھ اللہ نہ کرے آخرت بھی جائے گی۔ تو ساری باتیں میں نے کھول دی آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور یہ پیکج لینا ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ میں رسالے والے کے تمام وہ وظائف جو پہلے کرتا تھا یا کرتی تھی وہ شروع کر لو، حضرت صاحب کا فلاں بیان آیا ہے، فلاں چینل پہ، فلاں رسالے میں، فلاں کتاب میں وہ عمل ہے، میں وہ کر لوں، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کروں، شام کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کروں، میں فلاں کام کر لیا کروں۔ بھائی یہ فلاں والا ادھر کوئی چکر نہیں ہے۔ شافی کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ میں جو بھی بیان کرتا ہوں آپ کو ایک مکمل روڈ میپ دیتا ہوں تاکہ ایک رستے پہ آپ چڑھ جو، آپ کو ادھر ادھر ہونا نہیں پڑے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو یہ عمل کرے گا، یعنی زکوٰۃ دے گا، سورہ مزمل کی اور درود تاج کی، اور 7 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے۔ ہاں، اس کے درمیان کے جو دن ہیں ان میں 3 بار سورۃ مزمل اور 3 بار درود تاج روزانہ پڑھنا ہے۔ کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں۔ بقیہ جو سارا وقت مل جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ، دن رات پڑھو، دن رات پڑھو۔ اللہ کا بھی ذکر، اللہ کے رسول کا بھی ذکر، اور اپنے لیے دعائے بخشش بھی، اور کوئی وظیفہ نہیں۔ سورہ مزمل 3 بار پڑھنی ہے، صبح پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، بغیر وضو کے پڑھ لو، جس حال میں پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، بعد میں تکرار کے اوپر کوئی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ حضرت صاحب میں یہ رستہ اپنا لیتا ہوں تمام وظائف چھوڑ کر، یہ آسان ترین آپ نے رستہ بتایا، اور کلی طور پہ یہ جمالی عمل ہے تقریباً، کیونکہ سورہ مزمل جو ہے وہ معتدل ہے، درود تاج جو ہے وہ کلی طور پہ جمالی ہے، تو جمال غالب ہو گیا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ تقریباً یہ جمالی عمل ہے۔ سورہ مزمل کے اندر 4-5 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی بلکہ ٹکڑے ہیں جن کے اندر جلال ہے، باقی سورہ مزمل بھی جمالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو درود تاج تو ہے ہی جمالی ہے، تو اس لیے جمال بہت غالب ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ 85% جمالی ہے، اتنا محفوظ عمل ہے۔ صرف ہونا کیا ہے کہ آپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے کریش ہونا، اللہ نہ کرے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کریش ہونا ہے، اپنی بدبختی کی وجہ سے اجڑنا ہے، اللہ نہ کرے، وگرنہ اجڑنے والا، برباد ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے، اس سے زیادہ محفوظ عمل نہیں ہے۔ اللہ والو جنہوں نے سورہ جن کا عمل کیا ہوا ان سے پوچھو سورہ جن کیا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو سوشل میڈیا پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں چینلز ہیں، کسی بھی چینل والے کو معلومات لینے کے لیے پوچھ لو، یا آج کل کتابیں ہیں وہاں سے پڑھ لو سورہ جن کیا کرتی ہے بندے کے ساتھ۔ کیوں؟ جب سورہ جن پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو میرے کملی والے کی وہ نگاہ نہیں ہوتی، وہ عامل کا کام ہوتا ہے۔ جب سورہ مزمل پڑھی جا رہی ہوتی ہے حضور کی نگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، پھر وہ تمام اولیاء اللہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ پڑھیں گے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کی جو ولایت ہے وہ سورہ مزمل اس کی بنیاد ہے۔ ہمارے سلسلے کی جو ولایت ہے وہ سورہ مزمل کے زیر اثر چلتی ہے، تو اس لیے پیرانے پیر کی نگاہ کرم ہوگی، تو جس کے اوپر پیرانے پیر کی نگاہ کرم ہوگی تو مولا علی کی نگاہ کرم ہوگی، تو جس کے اوپر مولا علی کا کرم ہو گیا اس پہ حضور کا کرم ہو گیا، تو جس کو حضور نے سینے سے لگا لیا، اپنی کملی میں چھپا لیا، وہ اللہ والا ہو گیا۔ یہ کل فلسفہ ہے۔ اب اس کے اندر آپ کوئی ٹچ لگاتے ہو تو آپ نے آپ کو کریش آپ خود کرو گے۔ آپ نے 3 بار اس کو تکرار میں رکھنا ہے، سورۃ مزمل کا بھی اور درود تاج کو بھی۔ ہر مہینے کی بھی 13-14 کو آپ زکوٰۃ دیں گے دوبارہ، اور دن میں روزے رکھیں گے، پھر اسی طرح آپ تکرار کرتے رہیں گے۔ اب آپ یہ عامل بن گئے، سوال یہ تھا عامل بن گئے، اب کیا ہوگا؟ جب آپ نے پہلی زکوٰۃ دے دی، آپ کے گھر میں سر درد سے لے کے کینسر تک کا مریض آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت کا ضیاع ہوگا۔ سر درد سے لے کر کینسر تک کا مریض ہے، کسی کے پاس آپ نے لے کر نہیں جانا، خود علاج کرو۔ رزق کی تنگی ہے، یہ اعمال کرتے ہو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ رشتوں کا مسئلہ ہے، اللہ حل فرما دے گا۔ اولاد کی نافرمانی، اللہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ جادو ہے،
पहली ज़कात से जादू का मसला हल हो जाएगा। रजत का मसला 7 ज़कातों के बाद जाके हल होगा, 7 ज़कातों के बाद। रजत वाले जिन्होंने उल्टे वज़ाइफ किए हैं, जो तो अगर घर के अंदर जादू के मरीज हैं, बदनी मरीज हैं, ठीक है, नजर बद का मरीज है और बदनी बीमारी में सर दर्द से लेके कैंसर तक का मरीज है, आपने कहीं नहीं जाना, घर में इलाज करो। ये मंजिल जो रोजाना पढ़ोगे, तकरार करोगे, इसका पानी बना के उसको देते रहो और दम करते रहो। लेकिन घर से बाहर आप फूंक मारोगे तो फूंक निकल जाएगी। एक रस्ते फूंक मारोगे तो दूसरे रस्ते में तुम्हारी फूंक निकल जानी। फिर शाफी 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 करेंदे रहोगे, शाफी नहीं सुनता फिर, क्योंकि शाफी बयान के अंदर सारा अपना जोर लगा देता है, हर बात आपको समझा देता हूं, फिर शाफी नहीं सुनता, जो मर्जी फिर करते रह जाए। फिर आपकी अपनी गलतियां हैं, फिर तुम टुंगे जाओ या टंगे जाओ या अल्लाह ना करे क्रैश हो जो, ये आपके नसीब है, ये आपके नसीब। जिस तरह वो मैं सुनाता हूं तो अक्सर, कोई एक साहब थे, उन्होंने गाड़ी का हारन दिया, वो रेडी वाला आया अमरूद वाला, उसे अमरूद लिए, किलो 2 किलो अमरूद लिए, गाड़ी में रखे ले गया। घर जाके अमरूद जो है वो काटे, उसमें से कीड़े निकल आए। अब वो आग बगोला गुस्से के साथ नीला पीला आया, आके रेडी वाले से लड़ना शुरू हो गया, तुमने मुझे अमरूद दिए हैं, इसमें कीड़े हैं, इसमें फुला है। अब रेडी वाला भी फनकार था, वो भी कुछ छोटे लेवल का शाफी था, उसने शीशा खोला ना, उसके करीब हो गया था, कहता भाई तुहाडे नसीब ने कल बंदा लैके गया, ओदी हुंडा मोटरसाइकिल निकली है, तुहाडे कीड़े निकल आए ने। ये तो बख्तां दी गल्लां ने, नसीब दी गल्लां ने, किसी दे कीड़े निकलते ने अमरूदां नाल, जो किसी दी मोटरसाइकिल निकलदी। तो फिर तो बाबा ये तेरे मुकद्दर हैं, तू टंगिया जावे, टुंगिया जावे, या अल्लाह ना करे क्रैश हो जाए। और अगर शरायत के साथ चलेगा, अगर तू हजूर का गुलाम ना बने, अल्लाह के दर का फकीर ना बने, क़यामत वाले दिन तो हमारा गिरबान पकड़ लेना। हम इस दुनिया में भी जिम्मेदार हैं और आखिरत के दिन में जिम्मेदार। शर्त क्या है कि जो असूल बताए हैं उनके अंदर रहना है, कोई इसके साथ और अमल नहीं करना। दिन रात सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने, इस्तगफार करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सदका खैरात करो, खलास, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अपने घर के अंदर आप पहली ज़कात देने के बाद हर तरह के मरीज का इलाज कर सकते हैं। जब आप 7 ज़कातें दे देंगे, कितनी ज़कातें? 7, यानी 7 महीने के बाद आप बाहर के लोगों का भी इलाज कर सकते हैं, यानी आप प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं। अगर आप मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहें तो आप खिदमत भी कर सकते हैं, यानी 7 ज़कातों के बाद। और अगर आपने 3 ज़कातें कामयाबी के साथ दे दी, यानी 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आपने 3 ज़कातें दे दी, तो आप जो छोटे छोटे मरीज हैं बाहर के भी, उनको भी डील कर सकते हैं। लेकिन मैं इजाजत इसलिए नहीं दे रहा कि आज के दौर में जुबान में वो तासीर नहीं होती। अगर आपने किसी को फूंक मारी या इलाज किया, वो मरीज जो है वो बहुत ज्यादा जादू का तगड़ा हुआ, तो वो जादू आप पर आएगा, आपकी मंजिल रुक जाएगी, आपकी मंजिल रुक जाए। तो इसलिए 7 ज़कातें देने के बाद आप प्रोफेशनली भी काम कर सकते हैं। अगली बात, किसी के ज़हन में ये आ सकती है, कोई औरत है, कोई नौजवान है, वो कहता है हज़रत साहब मैंने ये वाला काम नहीं करना। भाई मैं भी तो कहता हूँ ये काम नहीं करना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि ये काम नहीं करना। लेकिन जिन्होंने ये काम करना है, हमने उनको भी तो साथ लेकर चलना है ना। जिन्होंने ये काम करना है वो हो गए फारग। पहली ज़कात के बाद अपने घर का काम करें, 7 ज़कातों के बाद मखलूक की खिदमत भी करें। जो महज अल्लाह के कुर्ब, हुजूर की गुलामी के लिए करना चाहते हैं, वो बस अपना काम करते रहेंगे। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं होगी मैंने किसी का दम दरूद करना है या मैंने किसी से पैसे लेने हैं, वो अपना पढ़ते रहें। 7 ज़कातें जब हो जाएंगी तो अल्लाह वाला फिर तुम जानो तो सरकार जाने, सरकार जाने तो उनका रब जाने। आपने ये अमल इसी तरह चलाते रहना है, इसी तरह आपने चलाते रहना है। और इसी तरह दुरूदे ताज जो है उसको बढ़ाते जाएं। दिन के वक्त भी 3 बार की बजाय 11 बार पढ़े, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़े। लेकिन सूरह मुज़म्मिल जो है वो 3 बार ही काफ़ी है, उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही अमल काफ़ी है, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे वो एक अलग अमल हो जाएगा। उस पर मैं अलग आपको तरीका बताऊंगा कि सूरह मुज़म्मिल को इतनी तादाद में पढ़ना हो तो 7 दुरूद ताज कितनी तादाद में पढ़ा जाए, वो एक अलग पैकेज है। आज जो मैंने बयान किया है या आज जो मैंने पैकेज दिया है, ये है अवामुन नास के लिए। किन के लिए? अवामुन नास के लिए। ये पैकेज है अदना दर्जे के आमलीन के लिए, ताकि आप लोग जो आमलीन के पास जाके पैसा बर्बाद करते हैं, रुलते हैं, उससे बच जाओ और अपना इलाज घर में बैठ के खुद करो। आप तमाम हजरात को भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की है, 2, 3, 4 ज़कातें माशाअल्लाह वो अदा कर चुके हैं, वो इस काफ़िले में शामिल हो सकते हैं।